Hello children, let us start our new unit and new chapter. Now, after this diversity, our next unit is structural organization in plants and animals. Under this unit, structural organization in plants and animals, two chapters that are in syllabus: morphology of flowering plants, structural organization in animals. First, morphology of flowering plants. So let's begin with the morphology of the flowering plant. Again, in this chapter, your syllabus is reduced due to this COVID-19. In CBSE has reduced certain topics in the flowering plant: structure of root, stem and leaf. These are deleted. Now we start with the inflorescence and flower, and then after that description of only one family. Okay, inflorescence and flower के बाद हम एक फैमिली ही इसकी जो है वो और डिस्क्रिप्शन करेंगे, ईदर सोलेनेसी और लिलिएसी. ठीक है. आफ्टर दैट दिस फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, इट इज आल्सो नॉट इन द सिलेबस. सो बहुत अच्छे से आपने देखना है. पहले वाला पोर्शन जो आपकी बुक में दिया होगा, स्टेम रूट लीफ, वो नहीं करना है. इन्फ्लोरेसेंस से करना है फ्लावर. ठीक है. फिर लास्ट में फ्रूट्स एंड सीड्स वाला भी नहीं करना है. सो मॉर्फोलॉजी of inflorescence. So inflorescence is also given as a small topic in your book, लेकिन इसकी हम थोड़ी सी टाइप्स कर लेंगे because it is also in your practicals, and in the next online class we will discuss with examples, है ना. तो हम practical भी इसका कर लेंगे. तो arrangement of flowers on a floral axis is called inflorescence. You know, sometimes flowers they are solitary, अकेले अकेले होते हैं, but sometimes there is a group of the flowers, bunch जो होता है, and when they are present in the group, the arrangement of flowers on the axis is called inflorescence. And depending upon whether the main axis ends into a flower or not, there are two types of inflorescence, racemose and cymose. टिप पे फ्लावर होता है या नहीं होता. In the racemose inflorescence, indefinite growth of the main axis, unlimited growth. And in the cymose, the main axis ends in a flower, so there is a limited or definite growth. Then monopodial branches and sympodial branching, that is the again a difference. तो ये हम नेक्स्ट जब हम करेंगे इसकी ब्रांच तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कौन कौन सी होती हैं. अ यंगेस्ट फ्लावर, रेसमोस में नीचे से फ्लावर जो होते हैं, यंगेस्ट फ्लावर, दे आर एट द एपेक्स और एट द सेंटर, है ना. नीचे पुराने और ऊपर यंग फ्लावर्स होते हैं. एंड हियर इन द साइमोस द यंगेस्ट फ्लावर नियर द बेस और टू द आउटसाइड. Then besides these, there are some special type of inflorescence as combination of characteristics of both racemose and cymose type, or some special type of inflorescence that are present. The main axis or the stalk of the axis is stalk or of a solitary inflorescence, that is called the peduncle. Stalk of the individual flower is called the pedicel. See, main axis that is a peduncle, और एक अकेले फ्लावर की एक्सिस को हम कहते हैं pedicel. Then we are going to the next types of the inflorescence. ये हमने किया था रेस में, बुक में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ बेटा, डायग्राम्स नहीं है, बट स्टिल हम थोड़ी सी टाइप्स इसकी कर लेते हैं. द मेन एक्सिस इज इलोंगेटेड, और मैंने आपको कहा अनलिमिटेड इंडेफिनिट ग्रोथ, एंड इट इज फ्लावर्स आर पेडिसिलेट. See, difference between the peduncle and pedicel. Peduncle होती है मेन एक्सिस जिसमें बहुत सारे
फ्लावर्स हैं, है ना। और पेडिसल क्या है, एक फ्लावर की स्टॉक, दैट इज अ पेडिसल, दिस इज द पेडिसल। ये एक फूल है, इसकी ये स्टॉक, इसको हम पेडिसल कहते हैं, ठीक है। पिडंकल जिसमें पूरे फ्लावर्स, दे आर फ्लावर की पेडिसल्स लगी होती हैं, दैट आर द दैट इज द पिडंकल। तो एग्जाम्पल्स ऑफ द रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, रेडिश, देन मस्टर्ड, उसके आपने देखे होंगे सरसों के फूल। तो ये सारी जो है वो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है। सो दिस इज अ टिपिकल रेसीम। इसके आगे डिफरेंट टाइप्स है। तो पहले हम टिपिकल रेसमोस, देखो ये मेन एक्सिस, ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, नेवर एंड्स इन अ फ्लावर, दिस इज अ ग्रोइंग पॉइंट। और फ्लावर ये नीचे से निकला, एक बार इधर निकल गया, फिर इधर निकल गया, ठीक है, इस साइड पे आ गया, इस साइड पे, इस साइड पे, तो ये चलती जा रही है। सो दिस मेन एक्सिस ग्रोज कंटिन्यूसली, सो दिस इज अ टिपिकल रेसमोस, ठीक है। अब कुछ और टाइप्स हम करते हैं, रेसमोस के ही डिफरेंट टाइप्स। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेसमोस, बट यहाँ पे क्या है, द लोअर फ्लावर्स they have longer pedicels than the upper one. So all lie at the same plane, that is a corymb. जो ऊपर वालों की छोटी होती है स्टॉक्स, पेडिसल्स, और लोअर वालों की लंबी होती है, सो दे ऑल कम टू लाई एट द सेम पोजीशन, दैट इज द कॉरिम्ब। देन कॉरिम्बोस रेसीम, थोड़ा एक बीच वाली स्टेज आ गई है, तो इसके लोअर फ्लावर्स दे हैव लॉन्ग पेडिसल्स एंड द अपर फ्लावर्स, बट स्टिल दे डोंट रीच एट द सेम पॉइंट, है ना। दैट इज द कॉरिम्बोस रेसीम। अम्बल, दे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, एक ही पॉइंट से, पिडंकल इज रिड्यूस्ड, एक पॉइंट पे आ गया, और उसके बाद सारी पेडिसल दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, दैट इज द अम्बल। स्पाइक, स्पाइक इज जस्ट लाइक द टिपिकल रेसीम, जैसे ये है, लेकिन फ्लावर्स आर सेसाइल, सेसाइल मीन्स विदाउट पेडिसल, विदाउट स्टॉक्स, फ्लावर्स दे आर सेसाइल, सो दिस इज द स्पाइक। तो इसी तरह से फिर हम उसके बाद करेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो इसको हम बाद में करते हैं। तो ये एक बार, ये कॉरिम, ये देखो टिपिकल, ये तो सॉलिटरी है, एक ही अकेला फ्लावर है, ठीक है, इसी की ये पेडिसल भी यही है, पिडंकल भी ये है ना। और यहाँ पे क्या है, रेसीम, टिपिकल रेसीम, ये पहले ये फ्लावर निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला, है ना। यहाँ पे ये ग्रोइंग पॉइंट, ये कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। स्पाइक फ्लावर्स दे आर सेसाइल, यहाँ पे है ही नहीं है, इनकी पेडिसल नहीं है, ग्रीन वाला पोर्शन नहीं है, सेसाइल। कॉरिम्ब, लोअर वन दे हैव लॉन्गर पेडिसल्स एंड द अपर वन एंड दे रीच एट द सेम लेवल, कॉरिम्ब, है ना, जैसे धनिया होता है ऐसे होते हैं ये। देन अम्बल, अम्बल मीन्स दे रीच एट द फ्रॉम द सेम एम पॉइंट, यहाँ पे एक ही पॉइंट से सारी पेडिसल्स निकल रही है। देन कैपिचुलम, जो है जैसे इसका हम सनफ्लावर होता है, दैट इज अ कैपिचुलम। तो इसको हम अभी करेंगे एक एक करके। पहले हम आते हैं कॉरिम पे, है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पिडंकल इज शॉर्ट एंड ऑल फ्लावर्स दे आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल। ये कैंडी टफ शायद आपने नहीं सुना होगा, सो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू कलेक्ट द एग्जाम्पल्स from nearby areas, so that in the online class we can discuss this. Umbel, they are starting from one point, same point, and capitulum. Here peduncle is retarded, तो peduncle की growth यहाँ पे रुक जाती है, peduncle that is retarded, और ये broad चौड़ा हो जाता है थोड़ा सा, and flattened, concave और convex. बाकी छोटे छोटे florets usually they are sessile, they are present on these, इनको हम florets कह देते हैं. All the flowers of capitulum अगर सेम ही है then it is a homogamous, अगर अलग अलग हैं तो उसको बोलते हैं raised floret, disc floret, तो they are the heterogamous. So that is a racemose. Cymose में क्या है, the main axis
ends in a flower. ये देखो ये एक्सेस निकली, इसमें फ्लावर लग गया. अब a lateral branch continues the growth. lateral branch निकली, वो भी फ्लावर में एंड होगी. अब एक और lateral branch निकल रही है, that ends in the flower. So growing point ends in a flower. Further growth is continued by one lateral branch. अब इधर lateral branch, इस तरफ lateral branch, तो ये बन गया स्कॉर्पियोइड. अगर एक ही साइड पे, यहाँ पे तो ना एक बार इधर से ब्रांच निकली, एक बार इधर से निकली, एक बार इस साइड से निकली, एक बार इस साइड से निकली. अगर वो एक ही साइड से निकलेगी, ऐसे ही हमेशा एक साइड से निकली, दैट इज द हेलिक्वाइड. ठीक है. सो दिस इज Cymos. There are different types: monochasial, dichasial and multichasial. या फिर हम कहते हैं uniparous, diparous, biparous and multiparous. तो ये है monochasial या uniparous. Means growing point ends in a flower. Further growth is continued only by one लेटरल ब्रांच. एक ही ब्रांच है ना, चाहे एक साइड पे निकल, एक ही साइड से निकल रही है, चाहे एक बार बारी बारी से दोनों साइड पे निकल रही है. तो हेलिक्वाइड एंड स्कॉर्पियोइड. तो this is the monochasial time. So many examples are there: datura, begonia, solanum. They are the examples of these. Dichasial biparous. Main branches देखो ends in a flower. Further growth is continued by two lateral branches. दो lateral branches. ये भी number two देखो ends in a flower और फिर further growth is continued by two lateral branches. फिर वो भी ends in a 3 नंबर के जो फ्लावर्स हैं अगली लेटरल ब्रांच. तो बॉगनविलिया, जैस्मीन, टीक, ये सारे जो हैं वो एग्जाम्पल है इसके डाइचेजियल और बाइपेरस साइन. मल्टीपेरस, वन मेन ब्रांच एंड्स इन अ flower. Further growth is taken by more than two branches. तो पहले यूनिपेरस में हमने किया एक ही लेटर ब्रांच कंटिन्यू करती है ग्रोथ. डाइचेजियल में किया ग्रोथ इज कंटिन्यूड बाय टू लेटर ब्रांचेस. एंड हियर इन द मल्टीपेरस और पॉलीचेजियल again peduncle ends in a flower, and from the base many lateral branch arise and they also terminate in the flower. फिर again lateral branches arise and they terminate in the flower. तो बहुत सारे गुच्छे ऐसे नजर आते हैं इसमें फ्लावर्स के. तो एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस, नीरियम. So these are some of the examples. So this is about the inflorescence structure of the flower. We will discuss next time. Thank you so much.